پروگرام عوام تک میں میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی خان۔ ملتان میں ایک بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا۔ گیس باؤزر زوردار دھماکے سے پھٹا جس نے حامد پور کنورہ کے متعدد گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھروں میں سوئے شہریوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ متعدد گھر جو ہیں وہ مسمار ہوئے، جس کے نتیجے میں 39 افراد بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھلس کر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 6 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک بچہ جس کو زیر علاج رکھا ہوا تھا برن سینٹر کے اندر، 6 ماہ کا وہ بچہ سبحان وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جس کے بعد جو اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ لیکن کمشنر ملتان کے مطابق جو ان کی پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے مطابق اموات کی تعداد 10 ہے۔ 3 افراد کی جو تدفین ہے وہ علاقہ مکینوں نے پہلے ہی کر دی تھی۔ تو اس طرح مجموعی طور پر 10 افراد اس خوفناک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مریم نواز شریف نے واقعے کا نوٹس لیا اور جو زخمی ہیں اور جو جاں بحق افراد ہیں ان کے لیے مالی امداد کا جو ہے اعلان کیا گیا، جس کا چیک بھی تقسیم کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر بھی نشتر برن سینٹر آئے، مریضوں کی عیادت کی۔ کمشنر ملتان نے 5 لاکھ فی گز زخمیوں کو امدادی چیک دیا، جبکہ جو جاں بحق افراد 7 تھے ان کے گھروں میں جا کر ان کو جو ہے 20 لاکھ کا امدادی چیک دیا گیا، جبکہ دیگر 3 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو بھی چیک فراہم کیے جائیں گے۔ قیامت ٹوٹی، پولیس یہاں پر ابھی بھی موجود ہے، ریسکیو اہلکار یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، گیس باؤزر پیچھے پڑے ہیں، ابھی بھی جو باؤزر یہاں پر پڑا ہوا ہے، جو کنٹینر یہاں پر پڑے ہیں ان میں گیس کا موجودگی بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو کام 3 سے 4 دن گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر ابھی بھی پانی کے سپرے کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں سے بات کرتے ہیں، ریسکیو سے بات کرتے ہیں کہ اس واقعے کی کیا نوعیت تھی، جو علاقہ مکین تھے انہوں نے کیا محسوس کیا، کیسے ان کے نقصانات ہوئے، مال مویشی جو ہیں وہ اس میں جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ معاملات یہاں پر ہوئے، کیسے انہوں نے مناظر یہاں پر دیکھے تھے۔ علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جن کے گھر یہاں پر تھے اور جو گھروں میں سو رہے تھے، اور کیا مناظر ان کے سامنے پیش آئے جب یہ دھماکہ ہوا۔ سر جی میں ریڈی لے کے آیا ہوں، تقریباً 10:25 تھے، پھر میں روٹی میں نے کھائی ہے، تو میں جیسے ہی سویا ہوں روٹی کھا کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد 11:02 ہو رہے تھے جس ٹائم یہ واقعہ شروع ہوا ہے۔ تو ایسے ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے جہاز سے جا رہا ہے، جیسے سلنڈر پھٹا ہے۔ تو میں باہر نکل کے دیکھا تو ماشاءاللہ تو جیسے دھند آ رہی ہے ایسا ہی آ رہا تھا۔ پھر ہمارے بچے نے دیکھا تو انہوں نے داڑھی کر دی کہ یہ تو ہمارا مر گئے۔ پھر ہم بچے نے نکل کے ہمارے لے کے ہم نے ہمسایوں سے بھی بول دیا، سب بول کے ہم بھاگ گئے تھے۔ تو جس ٹائم یہ پھٹا ہے، یہ 12 کا ٹائم تھا، استاد جی ہمارے گھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں بچا، نہ کپڑے، نہ ہمارے سونے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ ہمارا پانی کا انتظام، کچھ بھی نہیں بچا ہمارا۔ ہم ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ادھر کیمرے گھما کے، تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ بھائی دیکھا یہ تھا یہاں پہ نا 2 نمبر کام ہو رہا تھا 2 سالوں سے، کافی عرصے سے ان کو روک رہے تھے، یہ کسی کی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ پولیس بھی آتی تھی، ان کو بھی کہتے تھے جو بندہ بھی جائے اس کو سامنے سے گان دکھاتے تھے، بندہ واپس آ جاتا تھا۔ یہ اپنے گھر 8 بجے 9 بجے یہ پہلے خود چلے گئے، اپنا گھر لے کے سارا سامان لے کے چلے گئے۔ انہوں نے کسی کو کال بھی نہیں کی، نہ کسی کو بتاتے۔ اگر ہاں البتہ کسی کو بتا دیتے یہ جانے نقصان ہو، یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ تقریباً 9 جنازے ہم نے ایک دن پڑھے ہیں۔ 2 بھائی تھے، ایک گھر کے تو 5 جنازے نکلے ہیں اکٹھے، ان کے بعد میں کوئی بھی نہیں بچا ان کا۔ بہت نقصان ہے۔ یہ آپ آگے چلے جائیں، یہ بستی ہے آگے، بالکل سارے کے سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں، کوئی کسی کا بھی نہیں بچا۔ بس ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے یا ان کا بالکل ختم کیا جائے ان کو، یا ان کا زمینیں سارے بیچ کے ان کی مدد کی جائے۔ 11:30 کا ٹائم تھا، ہم بٹھے پہ مزدور ہیں، بٹھے پہ کام کرتے ہیں۔ ہم گھر سوئے سے ادھر ہمارے سسرال ہے، سارے آدمی اٹھے کے ہم کو حقلہ دیا اٹھائے۔ ہم بیٹھ گئے، جب دھواں نکلا مجھے کہہ رہا دوست کا بتا رہے بھائی ادھر دھواں ہے۔ میں ادھر آیا ہوں، سامنے دیکھ دھواں لگا ہے، سامنے بڑا پلاٹ ہے، ادھر دھواں کھیلا تھا۔ ہم نے 2-4 بچے اٹھائے، بھاگے۔ میرا ادھر سالہ نوجوان، اس کو ہم نے بگا دیا۔ پھر جب ہم فلاس ہویا، ہم ہمسایہ کو حقل دی، کھڑا کرا بھاگ جاؤ۔ دوبارہ میرا سالہ آگے سو گیا، ادھر مکان گرے۔ صبح آ کے ہمیں سالہ نکالا، سایہ میرا فوت ہو گیا۔ ہم نے 9 جنازے ایک دن پڑھے ہیں، 2 ایک دن پڑھے ہیں۔ کل ہمارا ہمسایہ بچہ کالی نوجوان فوت ہو گئے۔
गवर्नमेंट इधर कोई इमदाद नहीं करे, मकान गिरे पड़े हैं, कोई नहीं आता इस वजह से देने वाला। लोग आते हैं, कोई खाना दे देता है, कोई जो इंतजाम होते थे हेल्प कर रहे हैं। इधर कोई गवर्नमेंट आइए से होन कह रहे जी भाई चेक दे, मरने वाले का 20 लाख रुपए चेक दे, जो मकान गिरे उन्हें खाली इमदाद कोई नहीं कर रहा। कैसे यहाँ घरों को नुकसान पहुँचा, कितना नुकसान पहुँचा है? 10:40 पे गैस लीकिंग शुरू हुई है। वो 11 बजे के करीब अपना जानवर वगैरह, अपनी फैमिली, अपने व्हीकल सब लेके चले गए हैं और उन्होंने किसी को बताना गवारा नहीं किया, जिस वजह से गैस पूरे इलाके में फैली है। किसकी आग जल रही थी, जहाँ से आग पकड़ी है और ये पूरे इलाके में आग फैल गई है, जिसकी वजह से आपके सामने सारे घरों में नुकसान हुआ है। लोगों की छतें गिर गई हैं, लोगों के किसी के 6 घर के बंदे फोत हो गए, किसी के 7 फोत हो गए हैं। कि सुनने में ये भी आया कि 15 लाख किसी के घर में पड़ा था, वो भी जल गया। यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। ये हमारी वर्कशॉप है, इंडस्ट्री हमारी छोटी सी, हमारी सारी दीवार टूट गया, सारी 3 फेस का मीटर सारा ख़त्म हो गया, सारी वायरिंग मशीनरी ख़त्म हो गया। यहाँ हमारा सिक्योरिटी गार्ड पड़ा था, वो सोया हुआ था, वो ICU के अंदर है। इलाका मकीनों से बात हुई हमारी, लेकिन यहाँ पर जो ताजिर हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनकी दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ये एक स्क्रैप की दुकान थी, यहाँ पर अभी देखें आप आग लगी हुई है, अभी भी इसमें से धुआं जो है उठ रहा है। तो ये जो यहाँ पर स्क्रैप का कारोबार करते हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका कितना नुकसान हुआ उस वक्त जब ये धमाका हुआ, तो आप कहाँ पर थे? सर मैं दुकान में सोया पड़ा था और 11:55 पे मेरी छत पिछली गिर गया, उसमें आग ही आग थी। जब मेरी छत गिर गया मैं निकलने लगा, शटर ही नहीं खुल रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से शटर खोल के बाहर निकला हूँ। बाकी सामान सारा मेरा चारपाई पे ही था और मेरी दुकान में जो माल था वो सारा सड़ गया। तकरीबन 9-10 लाख रुपए का मेरा माल सड़ गया। जो मेरी जमा पूंजी थी वो सब ही मेरी सड़ गया। लेकिन अभी तक कोई पूछने नहीं आया, कोई कुछ करने नहीं आया कि भाई तुम्हारा नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारे पास तो जो था वो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। नहीं, मरीम नवाज शरीफ ने इमदादी जो चेक हैं वो तकसीम करवाए हैं ज़ख्मियों में और जहाँ बहक अफराद में। आप उनसे क्या कहेंगे कि जो आप ज़ख्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, आप बच गए हैं, लेकिन आपका कारोबार का बड़ा नुकसान हुआ है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे पास तो जो था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब क्या करें, बच्चों का पेट कैसे पालें, किस चीज़ से कारोबार करें? कुछ सरमाया होगा तो कारोबार करेंगे। सर ऐसा है कि मेरा वहाँ पे मज़दा खड़ा था साथ में फार्टोन में, तो वो भी जल गया, उसकी एक साइड मुकम्मल तौर पे जल गई है, टायर शायर काफ़ी सारे भी उसके पिघल गया। तो मेरा नुकसान हुआ है। यहाँ पे इमदादी जो है ना, ये नहीं कि ये कर तो रहे हैं गवर्नमेंट वाले, लेकिन एक्चुअल बंदों के पास नहीं पहुँच रहे। जो हॉस्पिटल में जो यानी कि इनके रिकॉर्ड में आ गए हैं तो वो है। मेरी बताते खुद पीठ जली हुई है इस वक्त, हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे तक किसी ने कोई अप्रोच नहीं की। सर ये आपके सामने ही है, देख लो सारा कुछ जला पड़ा है। चावल की पालिश थी, रैश पालिश थी और फक वगैरह थी, दाज वगैरह पड़ा था। हमारा 22-23 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हमारा तो गिर गई है। और अल्लाह आपका भला करे, हुकूमत से अपील है हमारी मदद करे। मदद तो अल्लाह पाक ने करनी, अपील हुकूमत से है। जी भाईजान, सबसे पहली बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत करे अपने हबीब के सदके, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है जो ज़ख्मियों को या जो भाग हुए हैं, ये हमें अभी तक नहीं कन्फर्म हुआ किसी को क्या दिया है, किसी को क्या नहीं दिया, जो हकीकत है। तो दूसरी बात माली नुकसान देखा जाए तो भाईजान ये आपके सामने है, राइस पॉलिश का, फक का, चावल और धान का, ये हमारा काम था, छोटा सा काम था। इसमें 22-23 लाख रुपए का जो हमारा इन्वेस्ट था जो अब जल गया है, ख़त्म हो गया। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो है ये जो नुकसान हुए हैं, ये अल्लाह खैर करे, वो देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हुकूमत का काम बनता है कि हमारे जो है कोई इन नुकसान पे कोई थोड़े नज़रियात वो करें, कोई इमदाद करें। हमारी ये हुकूमत से अपील है। LPG का सिलेंडर है, बेसिकली तो उसका ब्लास्ट है। उसके साथ जो सिलेंडर्स की मौजूदगी है, वहाँ से तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी स्टार्ट हो रही है कि डेफिनेटली उस LPG के कंटेनर के साथ सिलेंडर्स का क्या काम था। डेफिनेटली चोरी का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ गलत हरकत की है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहीं इसी बस्ती के ही रहायशी हैं। यहाँ इनका ये स्टोरेज पॉइंट है जहाँ ये डीजल वगैरह स्टोर करते हैं, लेकिन वहाँ LPG का जो कंटेनर खड़ा करना है रात के टाइम, वो सर्टेनली एक डाउटफुल एक्टिविटी है। उसके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करने जा रही है। नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 25-30 घरों की छतें गिर गई और आग लगी है। इस खौफनाक वाक़ये के अंदर इंसानी जानों के साथ साथ माल मवेशियों का भी बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। महकमा लाइफ स्टॉक का यहाँ पर रिलीफ कैंप लगा हुआ है, इनसे जानते हैं कितने जानवरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा, कितने एक्सपायर हुए। जी अस्सलाम वालेकुम।
जिस दिन ब्लास्ट हुआ है तकरीबन 40 के करीब जानवर एक्सपायर हुए हुए थे। उसके बाद जो काफ़ी सारे ज़ख्मी भी थे, तकरीबन 70+ एनिमल्स। तो उनको हम उनको सारे जो जले हुए थे उनके ऊपर दवाइयाँ अप्लाई की है, उनका इलाज मालजा सारा, इंजेक्शन वगैरह भी सारे। तो उसमें कुछ रिकवर हो गए हैं, जो ज़्यादा बर्न थे, ज़्यादा जले हुए थे, जो रिकवर नहीं हो सक रहे थे, तो फिर वो जो है ना ओनर जो हैं, मालिक जो थे जानवरों के, उन्होंने फिर कुछ स्लाटर भी किए हैं। बाकी कुछ काफ़ी अब रिकवर भी खड़े मौजूद भी हैं। डू में दियां ते जहेज बने पे ने, एक मेरे पुत्र दा भी मालूमात पैसा टुको रही सोना आई धुआं पहले तो असां रुके धुआं आई असां सारा फरेज लीक इटे थे धुआं रूह सारा औखा थी असां भाज पे आए असां कोई शइ नहीं संभल सके मोबाइल ना पैसा टुको सारे कोशिश की वञे सारा घर बना के दे वञे सारी इहा आहे साडे रिश्तेदार मेरे भांजे 6 बंदे हस्पताल उन्हों की परवरिश थी उन्हों की देखभाल थी सारी इहा गुजारिश है। मेरी मरियम निवास से अपील है कि ये 4 दिन हो गए हैं, इसने अब तक कुछ नहीं किया। रात को इतनी सर्दी थी, शदीद सर्दी थी, बच्चे सर्दी से बेहाल थे, कोई आग लगा कर हम बैठे हुए थे कि हाथ सेक दें। अब उसने अब तक कुछ नहीं किया। हमारे घर बार पैसा जेवर सब कुछ जल कर राख हो गया। जानवर हालात कुरान शरीफ भी वो भी जल कर राख हो गया, वो भी शहीद हो गया। क्या मरियम निवाज एक औरत नहीं है? मरियम निवाज को एहसास नहीं है? वो आकर देखे हमारे घर कैसे जले हुए हैं, हमारे घर में क्या हालात हुए हैं। हमारे से आके गुजारिश है उससे वो आकर देखें, खुद अपने आँखों से देखें। जिसके घर के ये हालात हुए हैं उनके आकर उनके घर पर उनका हक दें। आप खुद देख सकती हैं, उसको एहसास क्यों नहीं आ रहा। जानवर ऐसे भड़क मरते जा रहे हैं। जो सड़े हुए हैं वो भी एक एक कर मरते गए हैं। वो आए आकर देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सर्दी से किसी कोई कुछ नहीं दे रहा हमें। सब कह कर जाते, कितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने चैनल हैं वो यही कह कर जाते हैं कि दे देंगे, लेकिन अब तक आया कुछ नहीं है हमारे पास। ना ही क्या मरियम निवाज वोट नहीं लेगी? जिस वक्त वोट लेने आती है वो उस वक्त कितनी हड़ताल कर देती है कि वो हमें ये वोट दे, करीब भाग रही है उनको वोट देने के लिए। क्या उसका हक नहीं है वो आकर हमें कुछ ना कुछ हमारा आपका एहसास ही कर ले खुद? क्या वो ये देख नहीं सकती कि हमारे बच्चों के जेवरात थे, जहेज बने हुए थे, बेटे जवान थे, उनके जहेज जेवरात सब कुछ बना हुआ था। हमारे कारोबारी लोग जो हैं वो व्यापार का काम करते हैं, व्यापारी का काम करते हैं, उनके इतने सारे पैसे हफ्ता एतवार की मंडी करके रहे, उनके पैसे हैं थे वो लोगों को देने थे, वो जल कर राख हो गया। क्या वो हमें बचक सकते हैं जिनके हम देने थे? हम उनको क्या कहेंगे? हमारे घर पर छत नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे रोते हैं, कुछ भूख से, कुछ सर्दी से, पैरों पे उनके जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है, सर पर छत नहीं है। हमारे जो सब आकर हमारी बस्ती का आके खुद हालात आके देख ले। वो लोग कहते हैं कि ये एक ड्रामा बना रहे हैं, और खुद आकर देखें कि ये ड्रामा है या वाकई ये सीरियस हादसा हुआ है। खुद आकर देख लें, ये हादसा इतना खौफनाक हादसा है जो बच्चे भी अब घबरा कर घर नहीं रहते, भाग जाते हैं कि अम्मी हम नान के घर जाते हैं, हम बहुत दूर जहाँ से चले जाएं। ऐसे हाथ से खींचते हैं कि अम्मी आए जाएं, नहीं अम्मी हम यहीं बैठे हैं, अपने घर को कहाँ छोड़कर कहाँ जाएं हम। रात को 11:50 में आ रहा था, वो अपने बच्चे लेके ना दरिया चराब क्रॉस करा कारा दे। मैं देखा, मैं कह रहा ये गैस लीक हो गया है, यहाँ 2 नंबर काम होता है। हमारे को पता नहीं थी, 4-5 साल हो गए हैं। हमारे जानवर 40-50 जानवर जेवर वगैरह हफ्ता इतवार जानवर बेच के आए हैं। किसी का 10 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 50 लाख, 30-40 सोत्र मसाद चाचा भतीजा इधर रहते हैं। सब जल चुका है। 2 भांजे हैं, 2 भतीजे हैं, उसका जेवर वगैरह बनाया, बंडी बनाई है, उनकी शादी थी 2 मामाद। हर शय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो जिस्म के कपड़े हैं, जो जेब में मोबाइल था वो बच गया है, कशा नहीं बची। मरियम नवाज इधर आए देख जाए। बाहर निकले धुआंधार है, साथ में बच्चों को गिन के भाग गए हैं। 2 बेटियों का जहेज है, पैसा ही सारा कुछ भी नहीं चाहता। अपना दिन मरियम नवाज आवे, सन्ना अपील करे, सन्ना घर बना के देवे, सारे बालों का ना देखभाल करे, सब कुछ छत बना के देवे। चसा को भाई कैसा दी जरूरत क्या नहीं। ये ना मेरे ना 2 भाई, 2 भाभियाँ, 2 भतीजे सड़ गए, उन्होंने वास्ते बहु सारा दुनिया दुआ मंगे, अल्लाह करे उन्होंने सुख सेहत उन्होंने इलाज बहुत अच्छा थी वे, मेरे बिरावां का इलाज बहुत अच्छा थी वे।
देख सकते हो आप, देख सकते हो ये सारा घर सामान फ्रिज सारा कुछ सारे मोटरसाइकिल भी देख सकते हो, सारा हर शायद तबाह थी, सब कुछ नहीं बचा सारा। घरों के अंदर जो तबाहियाँ हुई, छोटे छोटे बच्चे इस तबाह हुए घरों के अंदर कैसे खेल रहे हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटरसाइकिलें, ये चारपाइयाँ लोगों की जल गई हैं, बिल्कुल राख हुई हुई हैं। ये दीवारें यहाँ पर गिरी हुई हैं, ये मकान है सामने जले हुए हैं, सारा सामान उनका जला हुआ है। ख़वातीन सामने बैठी हुई हैं बेयारो मददगार, छत के बगैर यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या नुकसानात इनके हुए और कैसे ये इतने दिन से छत गिरने के बावजूद ये कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। सारा कुछ जल गए, सारे बच्चों का जहेज है, मेरे 3 बच्चों का ही, एक भाई का जहेज है, शादियाँ करें थे 2-3 महीने बाद। सारा कुछ तुम्हारे सामने झूपने दे लाई बैठे, सारा कोई सवाह थी गए। डंगर डोर सब व्यापारियाँ हैं तो तकरीबन कहें मेरे को 8 लाख आई वही सड़ गए, तो 4 तोला सोना ही वही सवाह थी गए, सारा कुछ। हम तुम्हारे सामने ये हालात आप ही देखा है वे, मैं सारे को अल्फाज नहीं निकलते जड़ा हालात है। बस सारे निश्तर वाले हस्पताल वाले 6 मरीज हैं, उन्होंने जिंदगी बचावें, सारे की जिंदगी बचावें, सारा घर बनवाने से ये रिक्वेस्ट है। देवा हाँ मेरे नाल घा आई, मैं थबा कापते डंगर को ते नहीं हमचा, वही सारे जख्म हो गए, सारा घर तबाह सी गए। मेरे बच्चे हस्पताल गए पे, और मेरे बच्चे अपने हैं नहीं जान, 1.5 बच्चे मेरे बच्चे असा बेबे हैं। साकू यो होना खैर है, सारी ख्वाहिश ये है सारे घर बने, सारे बच्चे न रोवन, सारे बच्चे रुलते बदे न जाए न ठिकाना न के गाले कितने रासन। असा ये फरमाइश करें न सारे घर बन वजन, असा बहु राधी हैं, असा वोट आप उठे ने उन्होंने राधी करें, सारी कोई नहीं सुनता पिया। चौथी दीवार ऐसा रोंदे खड़े पिटते खड़े, सारी तो कोई नहीं सुनता पिया। आन ये तंबू डितने तंबू क्या करे न, कोई करे न, सारे निकल के बाल कोई किथाई बदे कोई किथाई बदे। असा ये जान कर जानने अल्लाह से को दुआ मंगते हैं, सारे घर ही बन बने, सारे बच्चे बच बने। सर मेरे 20 से 22 जानवर थे, 6-7 जल गए, 2-3 भाग गए, पता नहीं कहाँ गए हैं सर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी फैमिली भगा के ले गए। जानवर हमारे सड़ चुके हैं, ये देखें 10-12 बच्चे खड़े हैं, 10-12 की 5-6 की डेथ हो गई है सर। जानवरों को बहुत नुकसान हुआ है सर, पूरी बस्ती का नुकसान हुआ है। हमारा घर भी जल गया, आप चल के देख लें, हमारा घर भी जल गया है, हमारे जानवर भी जल गए हैं सर, बहुत शदीद नुकसान हुआ है सर। कहते क्या कितने का एक? हमारा जानवर कम से कम 2 तो 2.5 लाख रुपए का एक जानवर है सर। हमारी सब मेहनत ख़त्म होगी सर, घर में जेवरात पड़े थे, वो पैसे पड़े थे, हम मंडी से आए जानवर बेच के, वो भी जल गए सर, जेवरात भी जल गए। चल के देखें बिस्तरे कुछ भी नहीं बची सर, दुपट्टे वगैरह ये देखें, हम बच्चों के दुपट्टे लेके खड़े हैं, हम हमारे कपड़े भी सड़ गए घर में सर, कुछ भी नहीं हम हमारे के लिए बच्चा सर। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा वज़ीर आज़म आए इधर देखे, मरीम नवाज़ आए इधर देखे, हमारा हालात क्या हालात हो गया है सर। हमें अल्लाह के वास्ते इंसाफ चाहिए हमें बस। खुद अपने बच्चे मालो जान सब कुछ बचा के चले गए, यहाँ किसी को बताया तक भी नहीं है कि हमारा गैस लीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं बताया। यहाँ सब के यानी कि यहाँ पीछे जाके देखो बस्ती की बस्ती तबाह हो गई है, मकान सब गिर गए हैं, सब के सब जो है ना जानवर जल गए हैं। सर यहाँ बस्ती में काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों के घर तबाह हो गए हैं, हमारी मतलब यहाँ फैक्ट्री थी वो तबाह हुई है, और इस तरीके से इनके जानवर जल गए हैं। इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, इनके साथ इंसाफ किया जाए और जल्द अज जल्द वज़ीर आला या वज़ीर आज़म यहाँ विज़िट करें ताकि इनके मसाइल को हल किया जाए। वैसे गवर्नमेंट तावन तो कर रही है मगर मज़ीद तावन की दरख्वास्त है। पहले धुआं निकले, वाल धमाके पैन, असा बाहर निकले, बच्चों को चाक छाट के भाजियाँ, दूध डंगर जानवर सारे जल गए, घर सारा खत्म थी गए, साड़ी मंडी कशा नहीं बची, सारे कपड़े पावन को नहीं बचे, हर शह सारी बर्बाद थी गई। असा बच्चों को चाक बाहर निकल गए, दूध जानवर न जल गए, असा बाहर निकल गए, सारे घर के हालात तारे सामने है, देखी नो भी क्या कोई मसला थी यहाँ पे, क्या दसा दस कोई काम बाहर बोल नहीं सकते। ये सारा हालात है, सादा ही हाल है, ये हाल हवेला कच्चा है नहीं, बच्ची ना कोई कपड़ा बच्चे ना कोई सामान, सारा फट गए जल गए, सवारियाँ मोटरसाइकिल फिरते रेड़े खड़े, हर शह खत्म थी गई। ये मेरा पुत्र हाल है, आप किना देख लो क्या कोई थी आवे तक नजर आंदा भी हर शह, कोई लुक कोई गल तो कह नहीं। हमारा जो नुकसान हुआ है ना वो तो है इधर
करोड़ों का। तो हमारा जो पूरा घर है तबाह हो गया, जानवर थे वो मर गए। और उसके साथ जो है ना गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि हमारा जो है ना जितना भी नुकसान हुआ है उसका क्लेम हो, जो है ना हम ये अपील कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं, बाकी जो जिन्होंने ये किया है उनको गिरफ़्तार किया जाए। अभी तक उनके बंदे गिरफ़्तार नहीं हुए, तो हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए और हमारा नुकसान पूरा किया जाए। ये जो वाक़या गैस सिलेंडर वाला फटने वाला हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमें इस पे ऊपर दिली रंज है जो लोग शहीद, मैं उनको शहीद कहूँगा, जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्म आलमा का मदा फरमाए। बाकी ये कि जो इसके मुलविस हैं लोग, उनको कैफियत का तो पहुँचाया जाए, उनको सजाएँ दी जाए और इस अमल को रोका जाए। ये जो उधर वो गैस की वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, ये करते हैं, वो लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा इनको चाहिए, इदारों को चाहिए कि उनकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा कोई मुअस्सर इक़दाम करें ताकि आइंदा के लिए ये अमल ना हो। गैस ब्रोज़र में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए। हमें इंतहाई अफसोस है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के हादसा की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम किए जाएँ। जान का नजराने के बाद जो चंद पैसे दे दिए जाते हैं वो ज़िंदगी का नेमुल बदल नहीं है। जिनके वारसीन बच्चे फोत हो गए हैं, पैसे उनका नेमुल बदल नहीं है। जी, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ मैं कि इस तरह के हादसा की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम किए जाए। जितने भी करैक्टर्स थे, जैसे ड्राइवर था, सुपरवाइज़र था जो ड्राइवरों को कार्बन डाइऑक्साइड ला के देता था मिक्स करने के लिए, वो हमारी कस्टडी में है। इसी तरह और लोग जिसका कोई भी रोल था उसको हमने नामजद कर दिया है। चंद एक रह गए हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम गिरफ़्तार करेंगे। ये एक ऐसा सानिया है और इसमें जो साइंस इन्वॉल्व है, इससे पहले हमें उसका तदारक नहीं था। ये काम शुरू हुआ सिंध से और जो बंदे पकड़े गए हैं अब भी ज़्यादातर काम जो सिंध में करते हैं। और जो LPG के सिलेंडर्स हैं, जहाँ LPG के कैप्सूल कहते हैं इसको, जो बाउज़र है जिस पे जो ट्रक नुमा होता है, वो 5 या 6 जगह हैं जहाँ से ये फिलिंग होके आती है। इसमें LCC कंपनी जिसके 150 के करीब सिलेंडर्स हैं या गाड़ियाँ हैं, वो एज ए कंपनी मुलव्वस थी। ये जो सुपरवाइज़र थे, ड्राइवर्स थे, ये 1/3 इनकम का रखते थे और 2/3 जो है कंपनी को जाता था। हम ये इंफॉर्मेशन ओगरा को भी पास की है और जो एक्सप्लोजिव का डिपार्टमेंट है जिसने ये बाउज़र इसको अलाउ किए थे, उन्होंने भी इनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए तहरीक शुरू कर दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ओवरनाइट बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि जितने भी लोग इसमें मुलव्वस थे वो हमने पकड़ लिए हैं। उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चा दर्ज हुआ है। इंशाल्लाह सज़ा से ये बच नहीं सकते। पहाड़ टाउन में जो तबाहकारियाँ हुई वो हमने आपको दिखाई। जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे बात हुई, वो किस तरीके से बेयारो मददगार अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि उनके घरों की बहाली होगी, उनके घर दोबारा से तामीर होंगे। ख़वातीन बग़ैर छत के यहाँ पर बैठी हुई हैं। जो लोग हैं यहाँ के इलाका मकीन है, जो मुतासिर हुए हैं, इससे शदीद मुतासिर हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको माली इमदादी चेक मिल चुका है, जो जाँबाहक हैं उनके लवाहिकीन को इमदादी चेक मिल चुका है। लेकिन जिनके कारोबार यहाँ पर तबाह हुए, जिनके माल मवेशी यहाँ पर जल गए, जहेज़ का सामान जल गया, घर गिर गए, उनकी बहाली के हवाले से भी हुकूमत कुछ इमदाद यहाँ पर करे, क्योंकि इनकी जितनी जमा पूंजी थी वो सब कुछ जल कर राख हो चुकी है। अपने मेज़बान उमैर अली ख़ान को प्रोग्राम अवाम तक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।